Good morning. This is chapter number 5, Magnetism and Matter, and lecture number 7. Today's topic is dia, para, and ferromagnetic materials. Now, magnetic materials are divided into three categories: diamagnetic materials, paramagnetic materials, and ferromagnetic materials. Right? This is the comparison of dia, para, and ferromagnetic materials. Now see, this is diamagnetic substance. This magnetic material, when placed in magnetic field, it becomes magnetized in direction opposite to the magnetic field. In direction opposite to the magnetic field. But that magnetization is feebly magnetized. Second category is paramagnetic materials. These magnetic materials, when placed in magnetic field, they weakly magnetized in the direction of external magnetic field. Third one is ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances, when placed in magnetic field, they strongly magnetized in the direction of external magnetic field. As you know that every magnetic materials required external magnetic field to become magnetized. Now first point, diamagnetic substances are those substances which are feebly repelled by the magnet. Now why they are repelled? Since they induced or they becomes magnetized in direction opposite to the external magnetic field. Now come to the paramagnetic substances are those substances which are feebly attracted by the magnet. This magnet means external magnetic field. Since they magnetize in the same direction, that's why feebly attracted by the magnet. Now the third category, ferromagnetic substances. These substances are strongly magnetized by the magnet. Since these ferromagnetic substances are highly magnetized in the direction of external magnetic field. Now the examples, diamagnetic substances are those materials in which atoms have paired electrons, whereas paramagnetic substances are those materials which are having a single electron, means there are some or few unpaired electrons, right? So examples are antimony, bismuth, copper, gold, silver. These are the examples of diamagnetic materials. Whereas the example of paramagnetic substances are aluminum, chromium, alkaline, earth metals, platinums, oxygen, etc. Now important thing is ferromagnetic substance. The examples are nickel, cobalt, iron, right? So these are the examples of ferromagnetic substances. Second point, when in magnetic field the line of force tends to avoid the substance. Now see, this is the paramagnetic material, and magnetic lines are coming from left to right. It means north pole of external magnetic field is here in left hand side and south pole is in the direction of right side. So what will be the direction of magnetic field? From left to right. Whereas this magnetic materials induce the magnetic field, and the direction of magnetic field of magnetic material from right to left. It means it is inducing opposite magnetic field, right? This is the magnetic material. वो मटेरियल जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो ये वाला मटेरियल है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इसके अपोजिट है.
तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस अभी तक पैरेलल चल रही थी, अब वो इसके अंदर जाने से अवॉइड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद भी एक मैग्नेट बन गया। तो ये नॉर्थ पोल क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल से आने वाली लाइन को रिपेल कर रहा है, इसलिए ये कुछ इसके ऊपर से होके निकल जा रही है। वेयरएज इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सिंस इट induce the magnetic field in the same direction, so line passing to prefer to passing through the substance rather than in the air. Now see the animation. Now see magnetic lines, external magnetic field lines are coming from left to right, and the magnetic material, paramagnetic substance becomes magnetized. Here is south pole, this is north pole. So every line coming from the north pole will come to the south pole, and then it originate from this north pole to the south pole. So lines are coming to this south pole, whereas in ferromagnetic substance, line of force tends to crowd it into the specimen. Now see the animation. See, all the lines means number of lines increased passing through this ferromagnetic material, राइट। तो कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है, आपको इस तरीके की लाइंस बना के दे दी जाती हैं और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सी मटेरियल। अगर लाइंस जो हैं वो अवॉइड कर रही हों इस स्पेसिमेन से जाने के लिए, तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर कुछ लाइन पास हो रही हों इसके अंदर से, तो इसका मतलब कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, पैरा। लेकिन अगर बहुत सारी लाइंस इससे पास हो रही हों, तो इसका मतलब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जहाँ पे लाइंस पैरेलल जा रही हैं। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा वाला, डाया, ये ऊपर वाला डाया है, पहला वाला डाया, दूसरा वाला पैरा और तीसरा वाला फेरो। तो अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, हल्का हल्का सा शिफ्ट होगा क्योंकि फीबली मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है। तो वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा। अभी आप इस पे एक एनिमेशन भी देखेंगे। व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड क्विकली इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। नाउ व्हेन द डायमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड कर दें, यानी धागे से बांध दें मान लिया, ठीक है, और फिर उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो क्या होगा, ये जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड के, उसके परपेंडिकुलर अपनी डायरेक्शन बना लेगा। देखिए, जैसे ये था आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये जो रॉड है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल की है रॉड, इसे आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो देखिए ये कैसा घूम गया, ये परपेंडिकुलर हो गया उसके। पहले ये इस तरीके की पोजीशन पे था, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं डाया की। अब चलते हैं पैरा पे। When paramagnetic rod is freely suspended in uniform magnetic field, it align itself in the direction parallel to the field. क्यों करता है? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज्ड होता है, तो ये स्लोली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो। देखिए, राइट। Whereas ferromagnetic substance when suspended in uniform magnetic field, ये पैरा नहीं है, फेरो है, in uniform magnetic field it align itself to the direction of parallel to the field very quickly, ये बहुत जल्दी से आ जाएगा। दरअसल क्या है, जो पैरा और फेरो की प्रॉपर्टीज हैं वो मिलती जुलती हैं, लेकिन पैरा में क्या होता है, स्लो होता है,
और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें फास्ट प्रोसेस होती है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। अब एनिमेशन को हम देखेंगे, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया एकदम से वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट फिर से ये डाया है पहला वाला, दूसरा वाला पैरा है और तीसरा वाला फेरो है। ठीक है ना, तो ये फोर्थ कंपैरिजन है, फोर्थ पॉइंट का कंपैरिजन है। इफ द डायमैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन द वॉच ग्लास प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर when the magnetic field poles are closer and collect at the center when the magnetic poles are further। ठीक है, अब देखें इसको, ये आपने मैग्नेटिक मटेरियल यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा था, ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको यहाँ पे रखेंगे ये कलेक्ट हो जाएगा सेंटर पे, यानी ये सेंटर की तरफ रिपेल होता है। क्यों भाई, क्योंकि पोल्स के पास में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये रिपेल होते हैं। रिपेल होने के कारण क्या होगा, ये सेंटर पर कलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं पैरा की बात करूं तो पैरा जो है, पैरा को अट्रैक्ट करता है पोल। अब आपने क्या करा, पोल्स के बीच में पैरामैग्नेटिक पाउडर रख दिया। ठीक है ना, उसका लिक्विड बना के रख दिया और इस तरीके से रखा कि सेंटर पे ज़्यादा है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करेंगे ये जो है कलेक्ट हो जाएगा पोल्स की तरफ, क्योंकि पोल्स इसको अट्रैक्ट करते हैं। फेरो की अगर बात करें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हमने लिक्विड बनाया और उसे वॉच ग्लास में रखा और इस तरीके से रखा, सेंटर पे ज़्यादा है। तो जैसे आप रखेंगे तुरंत क्विकली पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट फिर से ये डाया है पहला वाला, दूसरा वाला पैरा और तीसरा वाला फेरो है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इंड्यूसिंग फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये उसकी डेफिनेशन है डाया की। पैरा की डेफिनेशन ये है कि व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट वीकली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग फील्ड यानी एक्सटर्नल फील्ड। Ferromagnetic substances are those substances which placed in magnetic field strongly magnetize in the direction of external magnetic field or inducing magnetic field। तो ये डेफिनेशन है तीनों। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, मैग्नेटिक डाइपोल ए हैज़ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। वो इसलिए क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। स्मॉल इसलिए होगी क्योंकि वीकली मैग्नेटाइज्ड है। पैरा की अगर बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसका स्मॉल पॉजिटिव होता है क्योंकि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है और लाइटली मैग्नेटाइज्ड होता है। जबकि फेरो की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है और सेम डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैज स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस है वो कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है। तो क्योंकि वो बहुत कम मैग्नेटाइज्ड हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हुआ है इसलिए स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। सेम चीज़ अगर पैरा की बात करें तो लाइटली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। और ये क्या होता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई इट हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है परमेबिलिटी। अब इसकी जो परमेबिलिटी है डाया की वो लेस देन 1 होती है, स्लाइटली लेस देन 1। वो इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। और ये होता है इसकी परमेबिलिटी पैरा की मोर देन म्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। और इसकी जो परमेबिलिटी है फेरो की वो मच ग्रेटर देन यूनिटी क्योंकि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। ठीक है ना। ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, पैरा की बात करें तो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, और अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरो की बात करें तो वो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस और कंपैरिजन
बिटवीन पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।